Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about 5 details about your future spouse. उनकी 5 कुछ ऐसी हैबिट्स या उनके बारे में कुछ ऐसी 5 चीज़ें जिससे आपको पता लगेगा दैट दिस इज़ योर लाइफ पार्टनर. बट ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होंगी उनकी पर्सनालिटी में या उनकी लाइफ में. It can be, it can be like a physical thing as well, like tattoos or something, 5 specific things, 5 details about your life partner जो आपको पता लगेगी इस रीडिंग में. And you will be able to also see that yes, this is your life partner. मतलब उनको देखने से या उनके बारे में जब आप जानना शुरू करते हो, then you realize that yes, these were the 5 things which Akshita predicted about my spouse. So yeah, you will get to know these 5 details in this reading. So let's hop right into your tarot and astrology prediction. All right. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you can pick your pile intuitively and you can even pick your pile according to the first letter of your name. अगर आपका intuition work कर रहा है, if you feel connected to one of the cards, 2 नहीं, एक कार्ड से अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करते हो, इंटुइटिवली आप अपनी पाइल को पिक करो. सो पाइल नंबर 1, इट्स ऑफ 10 ऑफ पेनिकल्स. ये जो तीनों कार्ड्स हैं, मैंने पहले तो डेक शफल करा और फिर ये 3 कार्ड्स आए. एंड सरप्राइजिंग फैक्ट दैट पाइल 1 और पाइल 2 का जो कार्ड निकला, इट्स अबाउट फैमिली, whereas पाइल 3 seems to be like पाइल 3 gives me the vibe that hey, I'm just here for this reading to maybe get some entertainment or maybe to just get to know what can happen in the future. But I am happy. मैं खुश हूँ being bachelor, being single. So it gives me that vibe, pile 3. Pile number 1 and pile number 2 seems to be extremely, extremely passionate towards creating their own family, and I do feel pile number 2 may want to live with their best friend with and adopt kids, and whereas pile number 1 probably just want a real family, real family meaning that want a husband or a wife and then children, want to live in a joint family, or pile number 1 could have lived in a joint family kind of situation. So whatever it is, मतलब ये कार्ड्स निकल के आए थे जब मैंने कार्ड्स डेक शफल करा था. तो इन कार्ड्स यू हैव टू सिलेक्ट योर पाइल. सो पाइल नंबर 1 10 ऑफ पेनिकल्स का है. ऑल राइट, अगर आपका नाम ADILMPSWZ इन लेटर्स से किसी एक लेटर से शुरू होता है, देन पिक पाइल नंबर 1. अगर आप 10 ऑफ कप से अट्रैक्टेड हो, सो पिक पाइल नंबर 2. ये वाला जो पाइल है, इट्स ऑफ द लेटर CEGJORTVY. सो अगर आपका नाम इन लेटर्स में से किसी एक लेटर से शुरू होता है, पिक पाइल नंबर 2. अगर देन थर्ड जो पाइल नंबर 3 है, इट्स ऑफ टेम्परेंस एंड इसके लेटर्स हैं BFHKNQUX. तो जो भी अगेन अगर आपका नाम इन लेटर्स में से किसी एक लेटर से शुरू होता है, देन पिक पाइल नंबर 3. ऑल राइट, सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए, अगर आपका इंट्यूशन वर्क करता है तो इंट्यूटिवली अपनी एक पाइल पिक करो. अगर आप 2 पाइल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फर्स्ट लेटर, अपने नाम का पहला लेटर, इससे अपनी पाइल को पिक करो. अगेन आई अंडरस्टैंड इंट्यूशन हमेशा वर्क नहीं करती है, सो इट्स फाइन. आप अपने फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम इससे भी पिक कर सकते हो. बट इफ़ यू फील इंट्यूटिवली कनेक्टेड टू वन ऑफ दीज कार्ड्स, एंड पिक दैट कार्ड, पिक दैट पाइल. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. इसका भी मैं अभी स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से लगा देती हूँ 30 सेकेंड्स के लिए. एंड you decide your pile or you decide your pile according to your first letter of your name. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट.
Hello, pile number one. So, this is your reading. You chose the Ten of Pentacles card here, or you chose this pile because आपका नाम ADILMPSWZ in letters से शुरू होता है. So, let's get started with your reading. So, 5 specific details, pile number one, आपके spouse के बारे में. Alright, 5 specific details. So what are those 5 specific details? Pile number 1 के spouse के 5 specific qualities या उनके बारे में कुछ. So we have 3 cards here. So we have Ace of Pentacles. Spouse seems to be extremely practical, money oriented person. Spouse can have Venus Ketu conjunction in their chart. And they are again very money minded people. They really believe in savings. तो वो stingy होंगे money को लेकर, थोड़े कंजूस होंगे और जल्दी से पैसे खर्च नहीं करेंगे. And you will also notice that spouse जो है जहाँ पर थोड़ी सस्ती चीज़ मिलती है वहाँ spend करना ज़्यादा prefer करता है as compared to महंगी. And if you get the same thing with less money, so why not? स्पाउस एक पेशेंट पर्सन भी है विद द पेंटिकल्स कार्ड. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ उनको पता है कि अभी महंगी बिक रही है, बट अगर मैं यही चीज़ 3-4 महीने बाद लूँ तो मुझे डिस्काउंट मिल सकता है. सो ही विल वेट और शी विल वेट फॉर 3-4 months एंड देन विल बाय दैट थिंग. ऑलराइट, तो सेविंग्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस स्पाउस है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है स्पाउस, मनी ओरिएंटेड है. Then we have 7 of Wands. Spouse is also someone जो जल्दी से दूसरों की बातों में नहीं आते, जो जल्दी से मैनिपुलेट नहीं होते हैं. स्पाउस जो है नो कहने में शर्माते नहीं हैं. स्पाउस अपना किसी को फ़ायदा नहीं उठाने देते हैं. स्पाउस बहुत हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन है. अगर उन्होंने कोई चीज़ डिसाइड कर ली तो कर ही ली, फिर उनको उस चीज़ से हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. ऑलराइट, सो ये चीज़ ना अगेन वीनस केतु के कॉम्बिनेशन से काफ़ी पता लग रहा है. लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स में भी आई सेड द वीनस केतु कॉम्बिनेशन, क्योंकि वीनस कैश फ्लो है, लिक्विड मनी है. केतु कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है एक पर्सन की लाइफ में ड्यू टू मनी. स्पेशली अगर वीनस 10 डिग्री पर हो, केतु 15 डिग्री पर हो, तो वीनस इज मूविंग टूवर्ड्स केतु, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है. अगर वेरस केतु 10 डिग्री पर हो, वीनस 15 डिग्री पर हो, ऐसे केस में एक पर्सन फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा मनी को लेकर. पास लाइफ में वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहे होंगे मनी को लेकर, पर इस लाइफ टाइम में वो इनफैक्ट रिलेशनशिप्स को लेकर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे. उनको ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे को प्यार चाहिए, मेरे को पैसे हैं ठीक है ओके, बट मुझे प्यार भी चाहिए, मुझे अच्छे रिलेशनशिप्स भी चाहिए. बिकॉज पास्ट लाइफ में वो पर्सन मनी की वजह से फ्रस्ट्रेटेड रहा था, तो इस वजह से अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान नहीं दे पाए. इस लाइफ टाइम में उसके पास पैसे तो होंगे पर रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे. तो इस वजह से वीनस की तो कॉम्बिनेशन समहाउ आई फील कि आपके चार्ट में या फिर आपके स्पाउस के चार्ट में ज़रूर होगा. अगेन 7 of Wands ये कि स्पाउस बहुत हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन है. एंड आई फील दैट ही रियली कनेक्ट्स विद हिज ग्रैंड फादर, चाहे वो पटर्नल ग्रैंड फादर है, मटर्नल ग्रैंड फादर है. बट I feel that he will be or she will be very close to their grandfather. Grandmother नहीं, grandfather. मटर्नल या पटर्नल ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे आपके स्पाउस. एंड आई फील दैट स्पाउस कुड हैव बिन बॉर्न एंड बॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली, या फिर वो अपनी नानी घर दादी घर बहुत ज़्यादा जाते होंगे. समहाउ बहुत कनेक्टेड रहे हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, बहुत क्लोज होंगे वो अपने ग्रैंड पेरेंट के, स्पेशली पटर्नल ग्रैंड फादर या मटर्नल ग्रैंड फादर से, दादा या नाना से बहुत ज़्यादा क्लोज वो रहे होंगे. एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स हियर शोज दैट स्पाउस कैन इवन हैव अ टैटू. ऑल राइट, इस एरिया पर मतलब रिस्ट पर जो है देयर कैन बी टैटू, या फिर फिंगर्स पर. लाइक दीज डेज पीपल ऑल्सो गेट टैटूज ऑन देयर फिंगर्स. मतलब इस एरिया पर, रिस्ट एरिया पर या इस एरिया पर लाइक स्पाउस कैन हैव सम टैटूज विच कैन बी रिलेटेड टू लाइट. ऑल राइट, लाइट जैसे स्टार्स एक तरह से लाइट है रात को, मतलब स्टार्स चमकते हैं तो लाइट चमकती है, तो समहाउ स्टार्स के टैटूज है, या इट कैन इवन बी कैंडल, इट कैन बी सम लाइट. ऑल राइट, तो कोई लाइट का टैटू या फिर फायर का टैटू हो सकता है, बट इट्स समहाउ इट्स अबाउट लाइट.
वो टैटू लाइट का होगा. They can be tattoo on their wrist or their fingers, alright, but they will be the people who will have tattoos. और अगर tattoo नहीं, so this person will love henna, this person will love to apply mehndi on almost every occasion. This will happen, alright. And something more, ये तो 3 ही चीज़ें हुई, 2 और स्पेसिफिक चीज़ें या कुछ और स्पेसिफिक चीज़ें स्पाउस के बारे में, उनकी हैबिट्स या उनके फिजिकल अपीयरेंस, मतलब एनीथिंग द स्पिरिट कैन टेल specifically about pile number 1's future spouse. So we have 3 of swords. Spouse is someone who would have gone through breakup in their life, especially वो breakup ना phone पर हुआ होएगा, कि like their person would not have even met them, but phone पर ही इस आपके spouse के किसी past के romantic partner ने उनके साथ breakup करा था, phone पर ही वो breakup हुआ था, and he felt very or she felt very disheartened, or it was a bad breakup, all right, it was a bad breakup. क्योंकि दिस पर्सन सेट सर्टन थिंग जिसकी वजह से आपके स्पाउस को बहुत बहुत बुरा लगा, और जिसकी वजह से उनका एक कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ, ऑल राइट. और ये फ़ोन पर ब्रेकअप हुआ है, ऑल राइट. ये कोई मिलकर ब्रेकअप नहीं हुआ, सडनली वो फ़ोन पर ब्रेकअप हुआ. इट कैन हैपन कि जो आपके लाइफ पार्टनर हैं वो पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, और वो पर्सन इनको छोड़कर कहीं और स्टेट या सिटी या कंट्री चले गए ड्यू टू देयर करियर, और ये बात स्पाउस को बाद में पता लगे. And he or she didn't even had the time, your spouse didn't even had the time to say goodbye to their romantic partner of that time. So phone पर breakup होना, that would have happened. Let's get some more info. कहाँ वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, किस जगह पर वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं. ओके, we have Aquarius. It's ruled by Saturn. It's a scientific, visionary, humane, factual, intellectual, democratic, eccentric, global, misunderstood. Especially Aquarius sign is a sign which represents large organization, large corporation, large committees, large group, profitable organization. So spouse ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बिताता है. कि स्पाउस जॉब कर सकता है किसी लार्ज कॉरपोरेशन में, या फिर उनका खुद का ये बिजनेस है जो वो एक लाइक देयर कैन बी मैनी पीपल वर्किंग अंडर हिम और हर, और उनका ये बहुत बड़ा कंपनी है. जो भी है, इट्स अ बिग कंपनी, इट्स अ बिग कॉरपोरेशन, या फिर वो उस कॉरपोरेशन में जॉब करता है. तो सबसे ज़्यादा वो अपना टाइम स्पेंड अपने करियर के तरफ ही करते हैं, अपने करियर में, अपने ऑफिस एरिया में वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. इवन एक्वेरियस रिप्रेजेंट्स द एल्डर सिबलिंग, तो अपने एल्डर सिबलिंग से भी जो है स्पाउस उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने एल्डर सिबलिंग के साथ. एंड ऑल्सो एक्वेरियस रिप्रेजेंट्स आवर फादर्स यंगर सिबलिंग, यानी हमारा चाचा, ऑल राइट, या फिर फादर की जो है छोटी बहन यानी हमारी बुआ. सो उनके साथ जो है आपके स्पाउस काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ऑल राइट. मे बी ऐसा हो सकता है कि उसी कंपनी में जो है स्पाउस के बड़े भाई या फिर बड़ी बहन काम करती हों, और इट कैन बी अ फैमिली बिजनेस जहाँ पर सभी उस फैमिली बिजनेस को संभालते हैं. तो स्पेशली जो स्पाउस के फादर के छोटे भाई बहन है उनके साथ स्पाउस को सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ जाता है, या फिर अपने एल्डर सिबलिंग के साथ स्पाउस को अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है. एंड इट इज़ ड्यू टू करियर, इट इज़ ड्यू टू वर्क, और इन जनरल इन लोगों के साथ समहाउ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इन जनरल, ऑल राइट. एंड अपने जो सीक्रेट्स हैं या अपनी जो सलाहें हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, ये यहाँ पर इसका इंडिकेशन है, ऑल राइट. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स, कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे उनकी हैबिट्स या अगेन स्पाउस के बारे में जो भी ओरेकल से इंफॉर्मेशन आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए. सो वी हैव victorious, it is good to ask for help, and yeah, spouse does ask for help from his elders, especially from his grandparents, because he or she feel कि उनके grandparents बहुत
उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, सो दे विल बी एबल टू गाइड हिम और हर वेल. स्पाउस सीम्स टू बी अ विक्टोरियस पर्सन. स्पाउस ने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया होगा बाय नाउ, या फिर बिफोर मीटिंग यू स्पाउस ने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली होगी, किसी चीज़ में बहुत विक्टोरियस भी रहे होंगे बिफोर मीटिंग यू. जस्ट बिफोर मीटिंग यू उनको कोई विक्ट्री भी हासिल ज़रूर हुई होगी. देन वी हैव घोस्ट. इट्स ए कम्यून विद योर गाइड्स. सो अगेन इट shows that spouse will feel a past life connection with you. You can even feel a past life connection from your spouse, and it shows both you and your partner becomes guides, gurus for each other, advice and guide each other really well. तो एक ये भी information है. आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हो और एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हो. दैट आई सी. Then we have blush. Love is blooming. So when you meet your partner, when your partner meets you, तो you guys blush a lot. आपको एक दूसरे के बातें, एक दूसरे के शब्द, एक दूसरे के vocabulary बहुत अच्छी लगती है, बहुत अपनी अपनी लगती है. All right. Maybe your spouse speaks your native language as well. This can happen. या फिर वो कुछ ऐसी बात करते हैं which makes you blush, or you may say something which makes them blush a lot. All right. So एक sweet love, एक स्वीट रोमांस यहाँ पर नज़र आ रहा है. देन वी हैव फ्रेंड्स forever. It says grow together individually. As I've told you, both becomes a gurus and guides for each other. तो यानी ईगो का प्रॉब्लम नहीं है आपके रिलेशनशिप मैरिज में. ईगो का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है. आप एक दूसरे की एडवाइस लेते हो, एक दूसरे की बात को सीरियसली लेते हो, एंड यू गाइज ग्रो टुगेदर. ऑलराइट. इंडिविजुअली यू गाइज ग्रो टुगेदर मतलब कोई एक दूसरे पर हावी नहीं हो रहा है. Right, so friends forever yani you become very good friends with your partner. You become very good we can say partners for life. तो कोई एक दूसरे को ऐसा डोमिनेट नहीं करता, ऐसा सिचुएशन यहाँ नहीं नज़र आ रही. यू गाइज आर लिटरली फ्रेंड्स फॉर एवर. यू गाइज टेक्स केयर ऑफ ईच अदर, मेक्स ईच अदर हैप्पी. कुछ ना कुछ एक दूसरे को जो खुशी देती है वो चीज़ आप एक दूसरे के लिए करते हो, एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हो. फर्स्ट यू गाइज आर नॉट लवर्स, यू गाइज आर फ्रेंड्स देन लवर्स. ये यहाँ पर इंडिकेशन है. देन वी हैव माइंड. इट सेज यू आर द मास्टर ऑफ योर इनर वर्ल्ड एंड यू डिसाइड हाउ द आउटर वर्ल्ड affects you. Cultivate a calm inner state. So it does show that your partner or maybe both of you bring peace and calm and harmony to each other. आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के सामने वो हो जो आप अंदर से हो. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिखावा करना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. स्पाउस भी आपके सामने ऐसा दिखावा नहीं करता है. जो हो सो हो, वो एक दूसरे को बताते हो. बहुत एक जेन्युइन वे से आप एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आ रहे हो. बहुत जेन्युइन वे से आप एक दूसरे से बात कर रहे हो और जेन्युइन हो एक दूसरे से, ट्रू हो एक दूसरे से, ट्रूथफुल हो एक दूसरे से. एक सेंस ऑफ कंफर्ट आप दोनों के बीच में ज़रूर होगा. कोई एक दूसरे को ऐसे अगेन ऐसा डीमोटिवेट या डोमिनेट नहीं करता. इनफैक्ट एक दूसरे को आप सपोर्ट करते हो, एक दूसरे को आप मोटिवेट करते हो. एंड यू गाइज आर अगेन फर्स्ट फ्रेंड्स दैन लवर्स दैन लाइफ पार्टनर. फर्स्ट यू गाइज आर फ्रेंड्स. सो ईजिली फ्रेंडशिप का रिलेशन होता है, ईजी लाइट रिलेशनशिप, वो आपको यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ नज़र आ रहा है. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1. सो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आपका जो 7th लॉर्ड है, 7th हाउस, 7th लॉर्ड धाराकार का, ये स्पाउस सिग्निफिकेटर है. मार्स इज हस्बैंड इन अ फीमेल्स चार्ट एंड वीनस इज़ वाइफ इन अ मेल्स चार्ट. तो वीनस मार्स हो गया या इवन 7th लॉर्ड हो गया या 7th और धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट हो गया. ये प्लैनेट्स जो हैं समहाउ आपके सेजिटेरियस, लियो सेजिटेरियस, एक्वेरियस में प्लेस्ड होंगे या फिर 5th, 9th या 11th हाउस में प्लेस्ड होंगे. इसका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन. इवन कैप्रिकॉर्न साइन 10th हाउस में भी प्लेस्ड हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड हो सकते हैं. सो लियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है. कैप्रिकॉर्न में श्रावण, धनिष्ठा स्पिल करता है. एक्वेरियस में शतभिषाख एंड पूर्वा भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे, चाहे वो वीनस है या मार्स है, 7th लॉर्ड है, या धाराकार का प्लैनेट है. धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी मार्स, कैन बी सैटर्न, ऑल राइट, or it can even be sun.
एंड योर स्पाउस, पाइल नंबर 1, योर स्पाउस कैन हैव सन इन लिब्रा. इसका भी इंडिकेशन हो, मतलब उनके चार्ट में, स्पाउस के चार्ट में सन इन लिब्रा हो, वीनस केतु कंजंक्शन हो. सन इन लिब्रा इज अगेन अ जेंटलमैनली कॉम्बिनेशन. जेंटलमैन होता है वो पर्सन, वो दूसरों को समहाउ आगे रखता है, दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है. सन इन लिब्रा. या मार्स इन लिब्रा हो सकता है आपके स्पाउस के चार्ट में. मार्स इन लिब्रा इज अगेन अबाउट, जैसे महात्मा गांधी जी का जो मार्स था वो लिब्रा साइन में प्लेस्ड था. So he wanted to bring people together, क्योंकि Libra is about opponents. It's about the people we meet. So it's about bringing two people together. बट जैसे मार्स जो है वो सोल्जर है, जो या तो मर जाएगा या फिर मार देगा, एक तरह से मर जाएगा या शहीद हो जाएगा. ये एनर्जी लिब्रा साइड में आके थोड़ा चेंज होती है. ये एनर्जी ऑफकोर्स इस टाइप की एनर्जी वही है कि नॉन वायलेंस की तरफ ज़्यादा जाती है. बात से हम हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी लेकर आती है. सो अगेन मार्स आपके स्पाउस के चार्ट में 7th हाउस है लिब्रा में प्लेस्ड हो. 7th हाउस में अगेन प्लेस्ड हुआ मार्स, तो आपके स्पाउस के चार्ट में तो स्पाउस विल बी अ मांगलिक. नाउ बीइंग अ मांगलिक इज़ नॉट बीइंग, इट्स लाइक इट्स डज नॉट मीन दैट कि क्रिमिनल है कोई वो पर्सन, ऐसा नहीं है. मांगलिक पीपल आर वेरी वार्म हार्टेड पर्सन, दे आर नाइस पीपल. So they are actually very passionate, very loving, very romantic in nature. ऑल राइट. सो ऐसी प्लेसमेंट स्पाउस के चार्ट में होंगी, ऐसी प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगी. जो मैंने अभी साइंस और वाली बात करी थी, साइंस और नक्षत्रस की, तो जो मैंने साइंस और नक्षत्रस बताया उसके अंदर आपके भी प्लैनेट्स सन मून राइजिंग आत्माकार का सेनेट सेनेट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होगा D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में. ऑल राइट. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग पाइल 1 एंड डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, either handmade, lens energized by me, you can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the 10 of Cups card, or your name starts with the letter C, E, G, J, O, R, T, V, Y. So that's why I chose this pile. Let's get started with your reading. So let's get to know 5 specific details of pile number 2's future spouse. उनके बारे में 5 ऐसी specific चीज़ें जिससे ये पता लगे कि that this is your life partner. Like 5 specific details about pile number 2's life partner. Okay, you already have the Queen of Swords card. So Queen of Swords here shows that, like, I feel that spouse can be born and brought up by just one parent. हो सकता है कि spouse के father इतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं थे स्पाउस की लाइफ में. मे बी स्पाउस के जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा ओवर एम्बिशियस थे अपने करियर को लेके, सो ही ट्रैवल्ड अ लॉट, या फिर मतलब somehow, you know, एक पेरेंट नहीं थे. एंड आई स्ट्रांगली फील दैट योर पार्टनर वॉज बॉर्न एंड बॉट अप बाय हिज मदर और बाय हर मदर ओनली, मतलब सिंगल मदर स्पाउस की नहीं हो सकते, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. बट इट कैन ऑल्सो बी सिंगल फादर. ऑल राइट. बट आई फील कि एक पेरेंट ने ही स्पाउस की अपब्रिंगिंग करी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इट्स द मदर. एंड स्पाउस ऑल्सो सीम्स टू बी क्लोजेस्ट टू हिज और हर मदर. ऑल राइट. मदर जो है बहुत हिम्मत वाली होंगी स्पाउस की, और बहुत ये कह लो कि इट वॉज अ टफ लाइफ फॉर द मदर. इट वॉज अ टफ लाइफ. एक बच्चे की परवरिश एक ही पेरेंट करे, इट इज़ अ टफ लाइफ. अ चाइल्ड वुड रिक्वायर बोथ मदर एंड फादर, और एक पेरेंट को ये जब जिम्मेदारी उठानी पड़ती है तो इट इज़ अ टफ थिंग. प्लस व्हाट सोसाइटी सेज इज़, वो भी एक अपने आप में बहुत क्रूअल हो जाता है. सोसाइटी बिकम्स क्रूअल फॉर अ सिंगल पेरेंट. सो कहीं ना कहीं सपोर्ट स्पाउस की मदर को इतना नहीं मिला होगा अपनी सोसाइटी से या फैमिली से, तो मदर डेल्ट हर ओन बैटल्स, वन हर ओन बैटल्स. तो मदर बहुत स्ट्रांग होंगी स्पाउस की.
मदर जो है स्पाउस की घर के काम भी बाहर के काम भी यानी वर्क जॉब और घर के काम जो वो सब बैलेंस करते हुए चली हैं. मदर कहीं ना कहीं स्पाउस की लाइफ में एक रोल मॉडल की तरह है. एंड मदर इज़ a very tough personality. Mother seems to be very modern. Spouse's mother is going to be quite modern person and very डायरेक्ट. मतलब कोई ऐसा वो नहीं कि चालबाजियाँ नहीं है स्पाउस की मदर में. स्पाउस की मदर बहुत सिंपल है कि भाई मैंने जो बोला वही मेरे मन में है, मेरे मन में कोई और बात नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वही मेरे मन में बात है. तो डबल मीनिंग या डबल फेस्ड ऐसा बात नहीं होगी. स्पाउस की मदर बहुत क्लियर होगी अपने कम्युनिकेशन में. और पीपल प्लीजिंग में स्पाउस की मदर बिल्कुल विश्वास नहीं करती हैं. मदर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है स्पाउस के ऊपर. सो दिस कैन बी सीन. समथिंग मोर, दूसरा स्पेसिफिक चीज़. सो वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. आई ऑल्सो फील दैट स्पाउस कैन हैव अ सिस्टर. स्पाउस कैन हैव अ सिस्टर. कहीं ना कहीं आपके स्पाउस को उन फीमेल्स ने पाल पोस के बड़ा करा है. ऑलराइट, उनके अराउंड काफ़ी फीमेल्स रही है. अगेन टीचर्स वी मेट इन स्कूल, जो हमें स्कूल में पढ़ाती है वो भी फीमेल्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. सो फीमेल्स ने उनको पाल पोस के बड़ा करा है. तो स्पाउस एक जेंटल नेचर के नज़र आ रहे हैं. वो लाइन नहीं क्रॉस करते. एक होता है ना मजाक मजाक में इतना मजाक कर देना कि दूसरा डाउन महसूस करने लग जाए, डोमिनेटेड महसूस करने लग जाए, डीमोटिवेटेड महसूस करने लग जाए. तो ऐसा मजाक नहीं. मतलब स्पाउस अपनी लिमिट में रहकर वो लाइन नहीं क्रॉस करता है मजाक करते हुए भी. मतलब स्पाउस विल हैव अ वेरी गुड ह्यूमर, ऑल राइट, बट वो कभी उस लाइन को या उस रिस्पेक्ट की लाइन को क्रॉस नहीं करते, मर्यादा को क्रॉस नहीं करते हैं. ऑल राइट, सो ही और शी विल रियली रिस्पेक्ट वुमेन अराउंड हिम और हर. ऑल राइट, उनकी सिस्टर हो सकती है. उनकी सिस्टर को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है, डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है. सिस्टर एक्चुअली में एक मॉडल जैसी दिख सकती है. स्पाउस की जो सिस्टर है शी मे लुक लाइक अ मॉडल. शी कैन बी स्लिम एंड टॉल. शी विल वेयर वेरी नाइस क्लोथ्स. सो स्पाउस की सिस्टर जो है काफ़ी ब्यूटिफुल होंगी. सो दिस कैन बी सीन हेयर. एंड समथिंग मोर, अपनी सिस्टर से भी ही इज़ और शी इज़ वेरी क्लोज. ये भी इंफॉर्मेशन है. उनकी सिस्टर फैशन, आर्ट्स, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी रिगार्डिंग चीज़ें सब्जेक्ट पढ़ेंगी और इस तरीके करियर में होगी. यूएक्स डिज़ाइनर टाइप ऑफ करियर्स में हो सकते हैं. एंड वी हैव द 5 ऑफ कप्स कार्ड. 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो करता है कि स्पाउस ना बीती कर आगे बढ़ने वाले पर्सन है. मतलब चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते हैं स्पाउस कहते हैं ओके व्हाटएवर हैपेंड इट हैपेंड, लेट्स गो, लेट्स होप फॉर द बेटर फ्यूचर. तो मतलब स्पाउस होल्ड नहीं करते दूसरों के अगेंस्ट ग्रजेस. इस वजह से स्पाउस का जो नेचर और एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, इट्स वेरी लाइट एनर्जी, वेरी फ्रेश एनर्जी. वो अपने साथ पास्ट का बैगेज नहीं लेकर चलते हैं. वो फॉरगेट मूव ऑन में विश्वास रखते हैं. मेंटल हेल्थ स्पाउस का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. मेंटल हेल्थ, मेंटली वो बहुत अच्छा करते हैं. उनको कोई ऐसा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे लाइफ में एज सच. मेंटली वो स्ट्रॉन्ग है स्पाउस. Okay, I feel this card wants to come out. Then we have the 7 of Pentacles. So spouse is also going to be someone who is very, very patient. All right. And I feel that spouse को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा. पेड़ पौधे लगाना इसका बहुत शौक होगा और फ्लावर्स लगाना इसका बहुत शौक होगा. गार्डनिंग में इन जनरल उनका बहुत ज़्यादा शौक हो गया. जहाँ पर भी स्पाउस रहते हैं वहाँ नेचर बहुत है, वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो नेचर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं. स्पाउस इज़ ऑल्सो समवन फिज़िकली अगर हम देखें तो स्पाउस का फिजिकल अपीयरेंस इट्स काइंड ऑफ बॉयश और गर्लिश. मतलब काफ़ी यंग दिखेंगे. इवन इफ ही और शी एंटर्स देयर 40s स्टिल दे गोना लुक लाइक दे आर इन देयर 30s. तो काफ़ी यूथफुल इन अपीयरेंस स्पाउस दिखेंगे आपके पाइल नंबर 2. काफ़ी ज़्यादा यूथफुल. और आई फील दैट स्पाउस विल हैव अ फेयर स्किन टोन. अब ऐसा नहीं है कि भाई जैसे जो फॉरेनर्स होते हैं जैसे रशियन है या फिर अमेरिकन्स है, उनका स्किन टोन गोरा तो है ज़रूर, गोरे होते हैं बिल्कुल ही, पर
इंडिया में जो स्किन टोन गोरा मानते हैं हम जिसको, वो वाले स्किन टोन की मैं बात कर रही हूँ. इफ़ यू आर समवन लिविंग इन साउथ इंडिया, ऑल राइट, सो वहाँ पर थोड़ा, क्योंकि वहाँ सन ज़्यादा रहता है तो थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन होता है, वीटिश कम्प्लेक्शन होता है, तो उस वीटिश कम्प्लेक्शन में थोड़ा गोरा होना, स्किन टोन लाइट होना, मतलब इट डिपेंड्स जिस भी एरिया में आप रहते हो, उस एरिया में गोरा किसको कहते हैं, फेयर स्किन टोन किसको कहते हैं, उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ. सो अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो तो जो वीटिश कम्प्लेक्शन में भी जो थोड़ा सा गोरा स्किन टोन है, फेयर स्किन टोन है, वो स्किन टोन स्पाउस का होगा. अगर आप रहते ही रशिया में हो या यूएस में हो तो वहाँ पे तो ऑफकोर्स यू विल फाइंड वेरी फेयर स्किन टोन पीपल. सो वो फेयर होगा बेसिकली, जहाँ पर भी आप रहते हो उस एरिया अकॉर्डिंग स्पाउस का स्किन टोन जो होगा वो फेयर होगा, थोड़ा रेडिश में भी होगा. रेडिश जैसे कि जब हम ज़्यादा देर धूप में बैठ जाएं या काम कर ले तो जो गोरा रंग होगा वही थोड़ा रेडिश हो जाता है. जो थोड़ा सांवरा होगा उसका रेडिश नहीं होगा इतना कम्प्लेक्शन, बट जो गोरा होता है उसके ऊपर वो थोड़ा रेडिश उसका कम्प्लेक्शन हो जाता है. गर्मी लगे उसे तो रेडिश कम्प्लेक्शन होता है. तो ऐसा स्पाउस का कम्प्लेक्शन हो, या फिर स्पाउस में डील विद एक्ने रोसेशिया एटसेट्रा, क्योंकि वो एक्ने रोसेशिया भी थोड़ा रेडिश कम्प्लेक्शन दे देता है एक पर्सन को. तो वो चीज़ से स्पाउस को ऐसा डील करना पड़ेगा. बट रेडिश फेयर कम्प्लेक्शन स्पाउस का यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड आई ऑल्सो फील कि जो स्पाउस के नेल्स होंगे वो काफ़ी, या फिंगर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी होंगी. इवन इफ इट्स अ मेल यू आर वॉचिंग फॉर अ हस्बैंड, देन ऑल्सो योर स्पाउसेस हैंड्स विल बी प्रिटी, कैन बी अ बिट फेमिनिन. ऑलराइट, लंबी उंगलियाँ, ऑलराइट, ब्यूटीफुल नेल्स, तो ऐसे स्पाउस के ऐसे हैंड्स होंगे. अगर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ वाइफ, तो वाइफ के जो हैंड्स होंगे वो ब्यूटीफुल होंगे, उनका शेप अगेन लॉन्ग फिंगर्स और नेल्स हमेशा सजे हुए, मतलब नेल पेंट लगाई हुई, तो ये ऐसे हैंड्स होंगे स्पाउस के. उनको रिंग्स पहनना, स्पाउस को रिंग्स पहनने का शौक़ होगा या नेल पेंट लगाने का शौक़ होगा. इवन इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर हस्बैंड, तो स्पाउस को रिंग्स पहनने का शौक़ होगा. इवन जैसे कई लोग क्या होता है कि वो अपना वॉच पहनेंगे और वॉच के साथ ऐसे कुछ ब्रेसलेट्स भी पहनते हैं, स्टैक करते हैं उसको. तो ऐसे स्पाउस ज़रूर, उनका एक ऐसा स्टाइल होगा कि वो रिंग भी पहनेंगे, वॉच भी पहनेंगे और फिर यहाँ पर ब्रेसलेट्स को स्टैक भी करेंगे. तो वो सुंदर दिखता है, कंप्लीट फीलिंग या कंप्लीट लुक उनको फील होती है. तो ऐसा स्पाउस का एक होगा सेंस ऑफ स्टाइल. ऑल राइट, सो ये यहाँ नज़र आ रहा है. लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द ओरेकल डेक. पांचवा जो स्पेसिफिक डिटेल है स्पाउस के बारे में कि कहाँ, किस एरिया में, कहाँ पर वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, किस एरिया ऑफ लाइफ को लेकर स्पाउस सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं. सो वी हैव थर्ड हाउस. ओके, वी हैव टू cards here, third house and the ninth house. All right, the third house here shows library, siblings. वैसे third house younger siblings का house है. It says courage, communication, enterprise, short journeys, willpower, correspondence, friends, memory, hearing, hands and arms. So third house ऐसे hands का भी होता है. अभी हमने hands की ही बात करी. All right, so hands and arms. So spouse के ऐसा भी हो सकता है कि spouse के हाथ पर या रिस्ट पर या आर्म्स पर टैटू हो. दिस कैन इवन हैपन. सो बट अगेन ये मतलब लाइक दे विल हैव सम थिंग गोइंग ऑन इन देयर हैंड, रिस्ट या आर्म, या तो टैटू होगा या फिर वो उनको ज्वेलरी स्टैक करना, अपनी रिस्ट वॉच के साथ अपना कोई ब्रेसलेट्स वगैरह स्टैक करना. ये स्पाउस को बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना. स्पाउस जो है वो सोशल मीडिया पर, अगेन थर्ड हाउस सोशल मीडिया का भी हाउस होता है. सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. और स्पाउस को पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक होगा. सो ही कैन हैव अ किंडल और शी कैन हैव अ किंडल, और दे विल हैव मैनी बुक्स, या उनके घर के पास लाइब्रेरी हो सकता है. दिस कैन happen. They can spend a lot of time in libraries, or growing up they went to libraries a lot. I personally went to libraries quite a lot when I was a child. So वहाँ पे वैसे पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, बट आई लव्ड बुक्स, आई स्टिल लव बुक्स. स्टेशनरी आइटम्स मुझे पसंद है. इसी तरह अगेन ये ज़रूरी नहीं कि स्पाउस को पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है. कई बार हमें किसी जगह का माहौल बहुत अच्छा लगता है,
सो आइदर स्पाउस विल लव टू गो टू लाइब्रेरीज और उस इन्वायरमेंट को सोक इन करना स्पाउस को बहुत अच्छा लगता है, या ग्रोइंग अप ही वेंट टू लाइब्रेरीज, तो वहाँ का इन्वायरमेंट स्पाउस को बहुत अच्छा लग सकता है. इन जनरल स्पाउस को सच में बुक्स रीड करने का बहुत शौक होगा. तो ये इन्फॉर्मेशन है. थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग है, तो वो अपने यंगर सिबलिंग के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, यंगर सिबलिंग के साथ बहुत बातें करते हैं, उनसे बहुत क्लोज हो सकते हैं, मदर से भी और अपने यंगर सिबलिंग से बहुत क्लोज हो सकता है. थर्ड हाउस हमारे गली के दोस्त भी हैं, हमारे नेबरहुड फ्रेंड्स हैं, ऑलराइट, जो हम बचपन के दोस्त कह लो, जो हमारा फर्स्ट फ्रेंड सर्कल होता है वो थर्ड हाउस है, तो उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है स्पाउस. देन वी हैव द 9th हाउस. इट सेज मेडिटेशन रूम, इट सेज फॉर्चून, होली सेक्रीफाइस, हायर पर्पस, गुरु, फादर, डिवाइन ग्रेस, फिलोसफी, विजडम, रिलीजियस मेरिट, इंटरनेशनल कनेक्शंस, ड्यूटी. वन मोर थिंग, विद द थर्ड हाउस स्पाउस काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स कर सकते हैं. उनका कुछ ऐसा जॉब हो सकता है, उनका कुछ ऐसा करियर हो सकता है, पाइल नंबर 2, जिसकी वजह से आपके स्पाउस को बहुत ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करनी पड़ती हो. मतलब 100 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स उनको ऐसे ऑलमोस्ट एवरी वीक जाना पड़ता हो. मतलब ऐसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल स्पाउस को बहुत करना पड़ता हो, एवरी वीक ही करना पड़ता हो. सो दिस कैन हैपन. या उनका शौक हो, भाई मेरे को तो जाना है बस, आई वॉन्ट टू वीकेंड गेट अवे. सो इन जनरल उनको ऐसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स करना, इवन माउंटेनियस रीजन्स पर जाना, जैसे यहाँ पर जो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है भी माउंटेनियस रीजन्स को रिप्रेजेंट करता है. तो हो सकता है उनकी जो मदर हैं, उनके जो फादर हैं, फादर की साइड से या मदर की साइड, वो माउंटेन्स या हिमाचल प्रदेश या माउंटेन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं. ऑल राइट, सो दिस कैन हैपन. बट शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करना स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा. उनका करियर ऐसा हो सकता है जहाँ पर उनको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करनी पड़ती है. देन 9th हाउस में इट शोज़ कि स्पाउस के कोई गुरुज मेंटोर्स भी होंगे लाइफ में. मतलब स्पाउस जब भी डायरेक्शनलेस महसूस करते हैं, उनका किस्मत बहुत अच्छा है कि उनको बहुत अच्छे गुरुज मेंटोर मिलते हैं जो उनको गाइड करता है, जो उनको एक डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में लेकर आते हैं. 9th हाउस हायर एजुकेशन के का है, तो स्पाउस कैन हैव an MBA. I just feel like spouse can have some MBA. या फिर in general spouse can have some master's degree. Spouse is going to be quite religious and spiritual in nature because 9th house of religion and spirituality. And it shows spouse will be someone who will really give respect and regard to spiritual gurus, mentors, his career related gurus and mentors as well. He or she will give a lot of respect to them. Spouse will be a righteous person, want to follow the dharma, want to follow the rules of the universe. So spouse जो है उस डिवाइन एनर्जी पर, भगवान पर, गॉड पर बहुत विश्वास करता है कि यस, कोई तो डिवाइन एनर्जी है जो जिसने इस यूनिवर्स को या हमें क्रिएट करा. तो स्पाउस ऐसे रिलीजियस भी होंगे, स्पिरिचुअल भी होंगे नेचर में, भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं. इस बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके स्पाउस का फ्रॉम गॉड, और एक बहुत करीबी का संबंध है स्पाउस का भगवान के साथ. तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. And spouse is someone who will be quite philosophical in nature as well. Has a lot of depth. Spouse एक shallow person, he has a lot of depth. They're quite philosophical in nature. Something more about spouse, कुछ और चीज़ें spouse के बारे में, pile number 2 के spouse के बारे में. So we have the Fruition card. Fruition here shows, जैसे यहाँ पर इस पर्सन के सर पे ये सारे फ्रूट्स बने हुए हैं. सो इट शोज़ कि स्पाउस का जो दिमाग है वो बहुत क्रिएटिव है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उनकी सोल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम अपनी तरफ पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करते हैं. स्पाउस एक ग्रोथ करने वाले पर्सन है. जैसे इस कार्ड में भी ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इस कार्ड में भी ये पर्सन एक प्लांट को ग्रो करा रहा है थ्रू देयर पावर्स, थ्रू देयर थॉट्स. तो स्पाउस बहुत एक पॉजिटिव पर्सन है. वो नेगेटिव एनर्जी उनमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो फॉरगेट मूव ऑन करते जाते हैं. जो भी देखो, हार्डशिप्स हर किसी की लाइफ में आती है, बुरी चीज़ें हर किसी के साथ होती है, अच्छे इंसान के साथ भी बहुत बुरी चीज़ें होती है, बुरे इंसान के साथ भी बुरी चीज़ें होती है. बट स्पाउस इज समवन जो पास को ऐसे पकड़े नहीं रहते, फॉरगेट मूव ऑन करते हैं. और इस वजह से आई सी कि वो बहुत ज़्यादा करियर में या लाइफ में प्रॉस्पर करते हैं.
स्पाउस एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन है अपने ओवरऑल लाइफ में, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत एक सक्सेसफुल, बहुत एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं स्पाउस. एंड आई फील दैट स्पाउस जो है उनको फ्रेश खाना खाना, फ्रूट्स खाना बहुत बहुत अच्छा लगेगा. And I feel that spouse will be a vegetarian. He may or she may not like non-vegetarian food. He can or she can be completely sattvic. जैसे completely sattvic का मतलब ये भी होता है कि जैन खाना खाना, विदाउट अनियन गार्लिक खाना खाना, तो ऐसे स्पाउस होंगे. मतलब उनको किसी को मार के खाना पसंद नहीं, मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड उनको पसंद नहीं है. समहाउ वो बहुत अगेन रिलीजियस स्पिरिचुअल इन नेचर हैं, तो इस वजह से दे आर नॉन वेजिटेरियन, और आई शुड से दे आर वेजिटेरियन बाय चॉइस. हो सकता है उनके परिवार में खाते हो, बट ये आपके जो स्पाउस है ये नॉन वेजिटेरियन फूड को हाथ भी नहीं लगाते. दे आर वीगन और वेजिटेरियन. ऑल राइट, देन वी हैव ग्रोथ कार्ड. अगेन योर स्पाउस इज समवन who will become very successful or who is already very successful. वो समय का सदुपयोग करते हैं, समय के साथ चलने वाले इंसान हैं. ऑल राइट, दकियानूसी ख्यालों वाले तो बिल्कुल भी नहीं हैं. स्पाउस जो हैं वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे. अगेन वी सी, जैसे यहाँ अर्थ नज़र आ रही है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जड़ें जैसे फैली हुई है. सो इट शोज स्पाउस जो हैं वो दुनिया में अपनी जड़ें फैलाएंगे, यानी अपना एक खुद का स्टैंड लेंगे दुनिया में. दुनिया वाले स्पाउस को बहुत जानेंगे. नेम फेम स्पाउस को ज़रूर मिलेगा. अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे स्पाउस. और आई फील स्पाउस इज़ ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन. सिर्फ खाने पीने में नहीं, करियर में भी पंचुअल होंगे, टाइम के पाबंद होंगे. ये गुड क्वालिटी स्पाउस में बहुत हैं. तो ये स्पेसिफिक डिटेल्स है स्पाउस के बारे में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव सेल्फ. इट सेज इफ बीटिंग योर सेल्फ अप वर्कड you'd be thin, rich and happy. Try loving yourself instead. So I feel that spouse is someone जो अपने आप को बांधते नहीं है, या अपने आप को जो है दूसरों के, like he is not a puppet of others. all right, he or she, they are their own person. वो अपना जो भी काम करते हैं ना दिल लगा कर करते हैं. ये तो करेंगे ही नहीं, या दिल लगा कर करेंगे, या तो 0% या 100% किसी चीज़ में होंगे. जो भी करते हैं दिल लगा कर करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं उसको दिल लगा कर पूरा करते हैं. इस तरह के स्पाउस होंगे. स्पाउस अपने साथ या दूसरों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते हैं. स्पाउस कहते हैं कि अगर देखो करना है काम तो करो, नहीं करना है तो तुम जा सकते हो. सो इट्स लाइक स्पाउस बहुत क्लियर है, बहुत फैक्ट्स उनके क्लियर है माइंड में. ऑल राइट, और मदर का बहुत एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है. जैसे हम कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत का हाथ है एक. सो इट इज़ काइंड ऑफ ट्रू इन योर स्पाउसेस केस. ऑल राइट, फॉर योर वाइफ और फॉर योर हस्बैंड, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मदर के साथ उनका. और भगवान की छत्र छाया भी स्पाउस के ऊपर है विद द 9th हाउस. हम जब भी वो भटका हुआ महसूस करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस ज़रूर मिल जाती है. राइट पाथ पर वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं. स्पाउस का आई फील एक इनोसेंट फेस होगा. तभी जैसा मैंने कहा भी कि स्पाउस जो है काफ़ी यूथफुल दिखेंगे अपनी अपीयरेंस में, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज. तो उनके फेस पर वो इनोसेंस ज़रूर होगी. ऑल राइट, इनोसेंस ज़रूर होगी. तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. ऑल राइट, एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर देखें तो आपका जो 7th हाउस 7th लॉर्ड धाराकार का मैरिज और स्पाउस को सिग्निफाई करता है. मार्स इज़ द हस्बैंड इन अ फीमेल्स चार्ट, वीनस इज़ वाइफ इन अ मेल्स चार्ट. सो आपका वीनस या मार्स या 7th लॉर्ड या धाराकार का प्लैनेट, इट कैन बी प्लेस्ड इन द 3rd हाउस और द 9th हाउस, कैन बी प्लेस्ड इन जेमिनी और सेजिटेरियस साइन, कैन बी प्लेस्ड इन कैप्रिकॉर्न, और कैन बी प्लेस्ड इन द साइन ऑफ कैंसर, या फिर कैन बी प्लेस इन द 4th हाउस. आपका धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट विच यू रिप्रेजेंट्स द स्पाउस, वो आपके चार्ट में मून हो सकता है, या वो आपके चार्ट में सैटर्न हो सकता है, या वो आपके चार्ट में इवन मार्स हो सकता है. ऑल राइट, सो कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ अच्छा हाँ, कैंसर साइन और जेमिनी, कैंसर, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये जो साइंस है ना, ये आपके स्पाउस के चार्ट में भी प्रोमिनेंट होंगे, यानी उनके भी
सन मून राइजिंग आत्मा कारक असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड या फिर योर प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा इन साइंस इन साइंस में. अगेन जेमिनी में भी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु, फिर पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में पुष्य श्लेषा, फिर सेजिटेरियस में मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है कैप्रिकॉर्न में श्रावण धनिष्ठा. आपके भी जो प्लैनेट्स हैं इन साइंस है इन नक्षत्रास में प्लेस होंगे इन द D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में. आपके आत्मा कारक का सन मून राइजिंग इन साइंस एंड नक्षत्रास में होंगे D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में. इवन साइन ऑफ पाइसिस में साइन ऑफ पाइसिस कैन ऑल्सो बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट और योर स्पाउसेस चार्ट, यानी इनमें प्लैनेट्स प्लेस हो. पाइसिस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्व भद्रपदा उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में भी आपके या स्पाउस के प्लैनेट्स जरूर प्लेस होंगे चार्ट में, बर्थ चार्ट में या D12 या D9 नवांश चार्ट में. Alright, so that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Also, like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 2. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards a temperance card, or you chose this pile बिकॉज आपका फर्स्ट लेटर जो है नाम का वो स्टार्ट होता है, आई मीन योर नेम स्टार्ट्स विद द लेटर BFHKNQUX. So, तभी आपने इस पाइल नंबर 3 को पिक करा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन टेरो. सो पाइल नंबर 3 आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में 5 स्पेसिफिक डिटेल्स, उनके नेचर या अगेन 5 स्पेसिफिक चीज़ें पाइल नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में. Okay, I feel this card wants to come out. So we have 4 of Swords. 4 of Swords here shows that spouse is someone जिनको नींद कुछ ज़्यादा ही आती है. बहुत ही ज़्यादा स्पाउस सोते रहते हैं और स्पाउस ज़्यादातर बेड पर टाइम स्पेंड करता है. मे बी बेड पर ही काम करता है, वर्क फ्रॉम होम करता है, बेड पर ज़्यादातर वो काम करता है, बेड पर ही खाना खाता है, बेड पर ही सोता है, बेड पर ही बैठकर टीवी देखते हैं. बेड इज़ लाइक एवरीथिंग. जो भी फर्नीचर घर पे है उसका काम ज़्यादातर बेड करता है, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो चाहे कुछ भी हो. उनसे कोई मिलने भी आए तो भी they will ask that person to come to their bedroom. So bed पर बैठकर बात करना. तो spouse seems to be very connected to their bedroom or to their bed. लिटरली जैसे एक उत्तर फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी पर्सन ऐसा ही होता है, बेड पर ही हमेशा बैठा रहता है या बेडरूम में ही ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करता है. उसका करियर भी कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ वो घर पे काम करता है, अपने बेडरूम से काम करता है. इनफैक्ट पूर्व फाल्गुनी पर्सन विल हैव उसके जो बेड साइड टेबल पर जो है चाय कॉफ़ी पानी के ग्लास ऐसे पड़े रहते होंगे, फिर जो इकट्ठे कर लेता है फिर वो सिंक में डालने जाता है किचन में. सो दिस हैपन्स. सो yeah, spouse seems to be very much connected to their bed. And I also feel spouse को photography का भी शौक होगा. spouse के bedroom में या उनके घर पे उनके परिवार की बहुत सारी pictures होंगी, उनके childhood की भी pictures उन्होंने लगाई होंगी अपने bedroom में या अपने घर पे. बहुत सारी ऐसे परिवार की पिक्चर्स होंगी. स्पाउस को लाइट का भी काफ़ी ज़्यादा शौक होगा. लाइट इन द सेंस कि डिफरेंट फैंसी लाइट्स घर पे होना, इसका काफ़ी ज़्यादा शौक होगा. सो दिस कैन बी सीन. ऑलराइट. एंड स्पाउस विल ऑल्सो हैव मैनी नाइट सूट्स, कलेक्शन ऑफ नाइट सूट्स. सो या आई मीन वो दिन में अपने नाइट सूट ही पहनते हैं और रात को भी. सो या दिस इज हाउ द स्पाउस इज. देन वी हैव the 9 of Pentacles. So 9 of Pentacles here again shows that your spouse is someone, जब भी वो बाहर जाते हैं, it can happen ज़्यादातर वो रात को बाहर निकलते हैं, रात को बाहर जाते हैं. क्योंकि दिन में ही इज़ और शी इज़ ऑलवेज वर्किंग या फिर वो सो रहे हैं, whatever the case is, उनको रात को मौका मिलता है बाहर जाने का और बाहर टाइम स्पेंड करने का. बट रात को मोस्टली एट
night, he or she comes out at night, seems like your spouse is a vampire or something, or whatever it is. spouse ज़्यादातर रात को निकलती हैं, उनको लॉन्ग ड्राइव्स पर जाना बहुत अच्छा लगेगा. और स्पाउस अपने हेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर होंगे, हेयर स्टाइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर होंगे. योर स्पाउस कैन इवन बी अ सिख, ऑल राइट, सिख इंडिविजुअल हो सकते हैं, पंजाबी हो सकते हैं. और स्पाउस इज़ ऑल्सो समवन जो, if you are watching this reading for a wife will love to apply eye makeup. Like she may like to enhance her eyes by wearing colored contact lenses, या फिर eyeliner बड़ा bold लगाना, या आई शैडो बहुत bold लगाना. तो ऐसे स्पाउस को मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ हस्बैंड, तो हस्बैंड जो ऐसे होंगे, इट कैन हैपन दैट योर स्पाउस कैन बी अ सिख इंडिविजुअल. तो जो अपनी वो पग हैं वो बहुत अपने कपड़ों के साथ परफेक्टली मैच करके वो पहनते हो. दिस कैन हैपन. अपने इनफैक्ट उनके पास बहुत सारी कैप की कलेक्शन हो सकती है. इफ़ यू लेट्स से यू गेट मैरिड टू यू नो हिंदू, ऑल राइट. सो जो भी तो स्पाउस के पास बहुत सारे कलेक्शन हो सकते हैं कैप्स की. उनको अपना सिर ढक कर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो कैप पहने, चाहे वो पग पहने, जो भी. सो दिस इज़ देयर. एंड स्पाउस इज़ समवन जिसको ज्वेलरी का भी बहुत ज़्यादा शौक होगा, वेदर मेल और अ फीमेल, व्हाटएवर. दीज पीपल लव टू वियर ज्वेलरी, लव टू वियर पेंडेंट्स, लव टू वियर ईयर रिंग्स. या फिर जैसे कि कई लोग होते हैं ना कि वॉच पहनेंगे साथ में ब्रेसलेट्स पहनेंगे, स्टैक करेंगे, उसको स्टैक करना कहते हैं कि वॉच और फिर 2, 3 या 4 ब्रेसलेट, ऐसे उनको कंप्लीट ऐसे एक फील होता है. सो योर स्पाउस विल वियर दीज थिंग्स, मतलब ऐसे ब्रेसलेट और ऐसा वॉच वो स्पाउस ऐसे पहनेंगे. रिंग पहनेंगे, लाइक ही और शी विल लव टू वियर रिंग. तो ज्वेलरी का इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा शौक होगा, सच धज के रहना इस पर्सन को अच्छा लगता है. दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गोना बी समवन हु विल रियली लाइक बर्ड्स. दे कैन लिटरली हैव बर्ड्स एट देयर होम, या फिर उनके घर के अराउंड बहुत सारे पैरट्स या बर्ड्स आ सकती हैं और वो उनको देखते हो. फैसिनेशन विद बर्ड्स. स्पाउस इज ऑल्सो समवन जिसको अगेन अपना घर सजा हुआ अच्छा लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम वो अपने घर में टाइम स्पेंड करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम वो अपने घर पे रहते हैं. एंड आई डोंट नो, भाई नंबर 3, आई फील ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ये जो टेम्परेंस कार्ड है, मैंने शुरू में भी कहा था जब मैं आपको ये बता रही थी ना कि भाई ये 3 कार्ड्स हैं, इन 3 कार्ड से आपको अपनी पाइल पिक करनी है शुरू में ही. तो आई वॉज टेलिंग कि पाइल नंबर 3 आपका कुछ ना ऐसा एक एनर्जी आ रही है जैसे यू आर लाइक आई एम टू कूल फॉर मैरिज, और आई एम टू कूल टू गेट इन अ रिलेशनशिप. मे बी आई विल डाई सिंगल, बट आई एम जस्ट वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर सम एंटरटेनमेंट और टू गेट सम स्पाइसी जूसी इन्फॉर्मेशन. सो यू सीम टू बी दैट पर्सन. तो जो मैंने सारी चीज़ें कही, ये आप ऐसा फील करो कि ये आपके बारे में है. सो या दिस कैन इवन हैपन. स्पाउस को जो है अपना अगेन घर सजाना बहुत अच्छा लगता है. घर पे जो एक फुल लेंथ मिरर हो मेरे भाई घर पे, ये स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा. स्पाउस के घर पर पाम के प्लांट्स बहुत होंगे, क्योंकि पाम प्लांट चाहे वो एरिका पाम है, बहुत सारी तरीके, फैन पाम भी होते हैं, बहुत सारी तरीके के पाम होते हैं. तो पाम के प्लांट्स या गमलों में पाम लगाओ, ये स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा. ऑल राइट. एक मॉडर्न लुक देता है, एक लाइवली लुक देता है. तो ऐसे घर के अंदर वो पाम रखते हो, दिस विल हैपन. अपने कमरे के अंदर पाम रखते हो, स्नेक प्लांट रखते हो, क्योंकि अगेन स्नेक प्लांट हो गया. स्नेक प्लांट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट प्लांट टू कीप इनडोर्स, स्पेशली इन बेडरूम, क्योंकि रात को भी वो ऑक्सीजन देता है. तो ऐसे प्लांट्स ज़रूर होंगे स्पाउस के बेडरूम में जो उनको ऑक्सीजन देते हैं. अगेन स्पाउस को पता है भाई घर में रहते हैं तो अपना हेल्थ का ध्यान रखो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली टू कम आउट ऑफ होम, कम आउट ऑफ योर हाउस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो अगर आप ज़्यादा टाइम अपने घर पर रह लो ना, हफ्ते आप बाहर ना निकलो, तो आपको कोई बीमारी भी लग जाती है. आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग ट्रूली, बिकॉज आई पर्सनली स्टे एट होम मोर. मैं घर से ही काम करती हूँ, मैं घर से ही रीडिंग करती हूँ. मोस्ट ऑफ टाइम आई एम स्टेइंग एट होम. बट जैसे अगर 7 दिन 8 दिन मैं कई बार घर पे रह लूँ तो बीमार होना शुरू हो जाती हूँ मैं समहाउ. सो दिस हैपन्स. बाहर निकलना बहुत 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 ज़रूरी है. सो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और स्पेशली अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए भी. जो बाहर फ्रेश एयर है वो घर के अंदर नहीं हो सकती है. सो स्पाउस इज समवन जो हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे, जिसकी वजह से वो एयर प्योरीफायर उनके घर पर हो सकता है, उनके कमरे में हो सकता है, और वो पाम के प्लांट
प्लांट या स्नेक प्लांट या स्पाइडर प्लांट्स, इस तरह के प्लांट्स स्पाउस के घर में, उनके बेडरूम में ज़रूर होंगे. Something more specific. So we have the chariot. As I've told you, spouse comes out of home at night. I told you this thing. The spouse, I'm not saying that spouse is a night owl. I'm not saying that, but it can be. ये चीज़ हो सकती है कि स्पाउस ना रात को लेट नाइट सोते हो, नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट वर्क, बट स्पाउस सी ड्रामास, के ड्रामास बहुत देख सकते हैं, फ़ोन पे इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर सकते हैं, जिसकी वजह से लेट हो जाता है उनको सोने में, और जिस वजह से अगले दिन वो स्लीपी ज़्यादा रहते हैं. तो इस तरह से स्पाउस नज़र आ रहे हैं. बट स्पाउस इज समवन हु लव टू ड्रेस अप स्पेशली फॉर द नाइट टाइम. ऑल राइट, सो ये यहाँ नज़र आ रहा है. चैरिट ये भी शो करता है कि स्पाउस को कार्स का शौक़ हो गया, व्हीकल्स का शौक़ हो गया. चाहे इट कैन बी स्पाउस में लव बुलेट, नॉट बुलेट, क्या कहते हैं, बुलेट ही होता है, रॉयल इनफील्ड का जो आता है, इवन हार्ले डेविडसन समथिंग, वो एक कंपनी है जो 2 व्हीलर्स ही बनाती है. सो इस तरह के व्हीकल्स का शौक़ हो स्पाउस को, विंटेज व्हीकल्स का शौक़ हो स्पाउस को, इन जनरल जैसे गाड़ियों का शौक़ होगा स्पाउस को. सो इस तरीके के शौक़ होंगे स्पाउस के. एंड देन वी हैव इवन, जैसे चैरिट ऑल्सो गिव्स मी दिस मैसेज कि जैसे थार जैसी गाड़ियाँ हैं, तो 3 डोर, स्पेशली 3 डोर थार, इसका काफ़ी ज़्यादा शौक़ होगा स्पाउस को. एक रगेड लुक जो होता है, चाहे वो स्कॉर्पियो एन है, तो इन तरीके के कार्स, इन तरीके के व्हीकल्स स्पाउस को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत उनको अट्रैक्ट करते हैं. ऑल राइट, देन वी हैव 7 ऑफ पेनिकल्स कार्ड. 7 ऑफ पेनिकल्स ये शो करता है स्पाउस इज समवन हु कैन वर्क on Instagram or YouTube. They can be an influencer. Spouse can be someone who can work in beauty related industry, fashion related industry, can be someone working towards digital marketing, all right, और सेल्स, इस तरह के करियर्स में स्पाउस हो सकते हैं, सेल्स और मार्केटिंग काइंड ऑफ करियर्स में स्पाउस हो सकते हैं. एंड स्पाउस के पास बहुत मनी है. स्पाउस इज लाइक, स्पाउस सीम्स टू बी लोडेड, स्पाउस सीम्स टू हैव लॉट ऑफ मनी. 7 ऑफ पेनिकल्स अगेन ये शो करता है कि स्पाउस जो है, दे लाइक टू इन्वेस्ट देयर मनी ऑन लग्जरी आइटम्स. लग्जरी चीज़ों का स्पाउस को बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, चाहे वो फ़ोन ख़रीदना है या चाहे वो गाड़ी ख़रीदनी है, चाहे घर है, लग्जरी चाहिए स्पाउस को चीज़ें, सुंदर चाहिए स्पाउस को चीज़ें. सो इस तरह का नेचर स्पाउस का नज़र आ रहा है. फिज़िकल अपीयरेंस में अगर हम देखें तो प्रिम एंड प्रॉपर. जैसे एक होता है कि अपने बाल जो है, इट इज़ वेरी फ्रिजी, ड्यू टू द वेदर इट्स वेरी फ्रीजी, तो स्पाउस मेक श्योर करेंगे मेरे बाल इधर से उधर ना हो, फ्रीजी ना हो, एकदम सेट दिखे मेरे बाल. तो कोई ना कोई जेल लगाना या कोई ना कोई कुछ ऐसा चीज़ लगाना बालों में कि सेट दिखे बाल, मैं प्रॉपर दिखूं. तो अपने इमेज को लेकर स्पाउस बहुत कंसर्न रहते हैं. और स्पाउस को ऐसा 10 स्टेप स्किन केयर हो सकता है, या फिर वो अपने स्किन को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर हो सकते हैं. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई डू सी. स्पाउस एक लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं. Even if you're watching this reading for a husband is no less than a princess, all right? I do see that. And let's pull some more specific cards कि भाई कहाँ पर स्पाउस सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कहाँ पर. ये कैंडल को क्या हो गया है? Oh my goodness. It's burning from multiple areas. And guess what? मुझे सांस लेने की भी दिक्कत है. That's why I'm not someone जो कैंडल्स ज़्यादा लगाना पसंद करता है. It's burning. So I don't know क्या करें इसको बुझा ही देते हैं. So it's stinking. Okay, we have Saturn. Okay, we have Saturn here. It says controlling, manifestation, work, contracted, details, obstructions, time, degradation. Okay, so Saturn करियर का ही सिग्निफिकेटर है. ऑलराइट, सैटर्न करियर को सिग्निफाई करता है, तो स्पाउस सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करियर में करते हैं. सैटर्न
स्पाउस करियर को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब स्पाउस बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन है. स्पाउस स्पेंड लॉन्गेस्ट टाइम इन हिज करियर. स्पाउस विल हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स. सैटर्न इवनिंग के बाद उगने वाला ग्रह है, तो नेचुरली नाइट टाइम में स्पाउस को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है. इवनिंग के बाद स्पाउस को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है. ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है. स्पाउस कैन ऑल्सो बी द एल्डेस्ट अमंग हिज सिबलिंग्स और ही विल बिहेव लाइक द एल्डर वन. स्पाउस सिंगल चाइल्ड होंगे, इसका एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है. या फिर अगर वो उनके सिबलिंग्स भी होंगे ना, वो अपने सिबलिंग्स से ज़्यादा क्लोज नहीं होंगे. हो सकता है उनके जो सिबलिंग्स हैं वो एक डिफरेंट जगह पर रहते हो, एक डिफरेंट स्टेट सिटी या कंट्री में रहते हो. एक डिस्टेंस है उनके और उनके सिबलिंग्स के बीच में. या फिर एक पर्सन सिंगल चाइल्ड होंगे आपके स्पाउस. और स्पाउस जो है दे विल बी द पीपल जो मनी अर्न करने में बहुत बिजी रहते हैं. दे लव देयर वर्क, दे लव व्हाट दे आर डूइंग, दे लव देयर वर्क. वो कभी नहीं कहेंगे ओ मुझे काम करना पड़ रहा है, ओ मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे ऐसा मतलब मेरा पूरा दिन बड़ा बिजी रहता है, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ काम की वजह से. ऐसा स्पाउस कभी शिकायत नहीं करेंगे. और स्पाउस जो हैं वो इज समवन जो लॉन्ग आवर्स तक वर्क कर पाते. उनकी तबीयत ऐसे ख़राब नहीं होती जैसे कई लोगों की हो जाती है. बट वेयर स्पाउस इज समवन जो कंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, कमिटेड रहते हैं अपने काम को लेकर. एवरीडे वर्क करेंगे. उनकी तबीयत अगर ठीक भी नहीं है लेट्स से, तब भी वो काम करेंगे. देन वी हैव फियर. सो सैटर्न वैसे ना फियर को भी रिप्रेजेंट करता है. सैटर्न फियर को भी रिप्रेजेंट करता है. अननेसेसरी फियर, ऐसे फियर कि भाई लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे एक पिंजरे में रहना चाहिए ताकि लोग मुझे एक्सेप्ट करें. जो सोसाइटी ने एक पिंजरा बनाया है, नहीं सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन है, अगर मैं उसमें फिट बैठता हूँ ना तभी मेरे को सोसाइटी लाइक करेगी, तो मुझे उस पिंजरे में रहना चाहिए. बट स्पाउस लाइक नहीं, मैं वो पर्सन हूँ ही नहीं. सो ही ब्रेक्स दैट केज, ही ब्रेक्स द रूल्स, ब्रेक द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. इस तरह के स्पाउस हैं. और स्पाउस जो है दे विल बी द पीपल जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं और वो दूसरों की एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी करना चाहते हैं. स्पाउस फील्स कि मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ है दूसरों को खुश रखने का या दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर खड़े उतरने का. स्पाउस कहते हैं जो मैं करता हूँ या करती हूँ वो मैं अपने लिए करता हूँ या करती हूँ, दूसरे के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं. फिर वी हैव द कार्ड रेजिस्टेंस. सो स्पाउस इज समवन हु इज क्वाइट हैज़ द पावर ऑफ रेजिस्टेंस. मतलब स्पाउस जो है रेजिस्ट करते हैं चीज़ों को या लोगों की बातों को. अगेन उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनको दूसरे लोग पुश भी कर रहे हैं पर उनको दिख रहा है कि मेरा इस चीज़ में फ़ायदा है, तब भी वो हटेंगे नहीं. एक ऐसे रेजिस्टेंस शो करता है. मुश्किल से मुश्किल इन्वायरमेंट में भी थ्राइव करते हैं. जैसे सक्यूलेंट्स जो होते हैं वो मुश्किल से मुश्किल इन्वायरमेंट में भी थ्राइव करते हैं, उसी तरह आपके स्पाउस है वो भी मुश्किल से मुश्किल इन्वायरमेंट में थ्राइव करते हैं. एंड स्पाउस इज़ अगेन समवन जिनको गार्डनिंग का काफ़ी शौक होगा, नए प्लांट्स घर पे लाना इसका बड़ा शौक होगा, नए फ्लावर वेस खरीदना इसका बहुत शौक होगा, अपने घर में प्लांट्स ही प्लांट्स हो इसका बहुत ज़्यादा शौक होगा, घर पूरा पौधों से भरा हुआ है. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. Even with the resistance card. Then we have blue, depressed, isolated, help. So हम जो सैटर्न का कलर है ना वो भी ब्लू कलर है. एंड आई जस्ट ऑल्सो फील इससे पहले जैसे अभी कैंडल जैसे हर जगह से जलने लगी थी और इट स्टिंग्स ऑल राइट. और मुझे पर्सनली मुझे थोड़ा है सांस की दिक्कत है मुझे, तो अभी मेरे जैसे वो सारा अंदर चला गया. सो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि इट कैन हैपन. जैसे हम एयर प्योरीफायर की बात कर रहे थे, हम पाम की बात कर रहे थे, अरेका पाम हम बात कर रहे थे, स्नेक प्लांट की, ये सारे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं. और यहाँ पर कैंडल ऐसी जली उसके बाद इस एयर प्योरीफिकेशन की जब हम बात करने के बाद कैंडल ऐसे जलने लगी एंड बहुत जैसे धुआं कर दिया मेरे अंदर, गले में मेरे को फील हो रही है इसकी स्मोक. सो बेसिकली स्पाउस को ना होगा इसका इशू होगा, स्पाउस को ब्रीदिंग इशू होगा, वो स्पाउस को एलर्जीज इश्यूज़ होंगे, एलर्जी हो जाना या ब्रीदिंग इशू हो जाना, छींकते रहना, स्नीजिंग का इशू. अगर कोल्ड हो गया तो छींकते ही रह जाना, एलर्जी कोल्ड मिक्स हो जाना. ऑलराइट, इसका दिक्कत होगा स्पाउस को. सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन हो सकता है स्पाउस के चार्ट में. जब सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन होता है ना तो एक पर्सन को ना ड्राइनेस नोज़ में रहता है, एक इचीनेस नोज़ में रहता है.
तो इस तरह का प्लेसमेंट होगा। केतु 4th हाउस में हो तब भी एक पर्सन को सांस लेने का दिक्कत होता है। केतु जो है वो ऐसा मतलब 4th हाउस लंग्स का होता है, और केतु पूरा ऐसा एयर भरने नहीं देता लंग्स में, छोटी सांस लेता है ऐसा इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत छोटी छोटी सांस लेगा। वैसे तो हर कोई आज के डेट में छोटी सांस लेता है, लंबी भर के सांस कम ही लेते हैं लोग, पर केतु इन द 4th हाउस ट्रबल देगा उस पर्सन को, रेस्पिरेशन का इश्यूज़ रहेगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। अब वो एलर्जी है या एस्थमा है, पर होंगे ज़रूर। तो स्पाउस को भी इश्यूज़ होंगे। स्पाउस कुछ ऐसी सिटी में रह सकता है जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ही कैन स्टे लिव इन दिल्ली और इन अ प्लेस अगेन जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। या फिर उनका घर जो है उसमें होम माइट्स, डस्ट माइट्स ये काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, और उसको क्लीन करने में स्पाउस का भी टाइम जाता है, या पर्टिकुलर होना पड़ता है। अगर आपको छींके आ रही है, एलर्जी है, तो आप मेक श्योर करोगे आपके अराउंड डस्ट ना हो। ऑलराइट, सो ये चीज़ स्पाउस इन चीज़ों से डील ज़रूर करेंगे। एंड जैसे ब्लू कार्ड है, फियर का कार्ड है, और सैटर्न भी फियर है, सैटर्न ब्लू कलर है, स्पाउस का फेवरेट कलर इट कैन बी ब्लू। एंड स्पाउस इज समवन जो आइसोलेटेड रहते हो ज़्यादातर। इट्स नॉट कि स्पाउस कोई मेंटल हेल्थ इशू से डील करता है, ऐसा नहीं है, पर लोगों को लग सकता है कि आपके स्पाउस मेंटल हेल्थ इशू से डील करता है, क्योंकि वो अकेले रहना, आइसोलेटेड रहना ज़्यादा पसंद करता है। ही मे नॉट लाइक टू स्टिक विद सोसाइटी बिकॉज ही फील कि सोसाइटी बहुत डिप्लोमेटिक है और सोसाइटी बहुत टू फेस्ड है, सोसाइटी के अपने रूल्स रेगुलेशन है, सोसाइटी सेल्फिश है। कहीं ना कहीं स्पाउस का ऐसा बिलीफ सिस्टम है। सैटर्न को अगेन वही है कि अगेन आइसोलेटेड फील हुआ था, तो स्पाउस कैन फील आइसोलेटेड, और पीपल में फील दैट योर स्पाउस इज काइंड ऑफ एन आइसोलेटेड पर्सन, डिप्रेस्ड पर्सन और नीड्स हेल्प, बट द रियलिटी इज़ कि आपके स्पाउस एंजॉय करते हैं ज़्यादा जब वो अकेले होते हैं। लोगों के साथ एक ग्रुप में रहना स्पाउस को घबराहट दे सकता है, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह स्पाउस को घबराहट दे सकते हैं, सो दैट्स वाई दे विल लाइक टू स्टे एट होम मोर। Then we have dream. It says manifestation plan and it says be. So yeah, it shows that spouse is someone जो manifestation में believe करता है, spouse is someone जो अपने self efforts में believe करता है, spouse is someone जो spontaneous इतने नहीं हैं, spouse plan करता है, strategize करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। स्पाउस स्पॉन्टेनियस इतने नहीं होंगे, प्लान के साथ चलने वाले इंडिविजुअल हैं। और स्पाउस जो हैं सो हैं, वो किसी के लिए बदलना नहीं चाहते, वो अपने लिए बदल सकते हैं बट किसी और के लिए नहीं बदलना चाहेंगे, और जो है सो है, जो मन में है वही बाहर है, वो ऐसे डिप्लोमेटिक स्पाउस नहीं होंगे। Then we have, if you avoid conflict to keep the peace, you start a war inside yourself. So it says speak up. स्पाउस इज ऑल्सो समवन जो चीज़ें अपने अंदर नहीं रखते, वो बोलते हैं, क्योंकि स्पाउस को पता है अगर मैं चीज़ें अपने अंदर रखूँगा वो मेरी मेंटल हेल्थ को और मेरी फिजिकल हेल्थ को ख़राब करेंगे। तो स्पाउस इज समवन हु स्पीक्स अप, हु स्पीक्स देयर माइंड। तो इस तरह के स्पाउस कम्युनिकेटिव बहुत होंगे। स्पाउस को गाना गाने का भी काफ़ी शौक होगा, स्पाउस के पास एक म्यूज़िक सिस्टम होगा घर पर, वहाँ मतलब माइक होगा, तरह तरह के स्पीकर्स होंगे, मिक्सर होगा। मिक्सर वो किचन वाला मिक्सर नहीं, वो जो यामाहा का आता है मिक्सर, या जिससे बेस बढ़ा सकते हैं हमारी वॉइस में, ऑल दैट, तो वो मिक्सर स्पाउस के पास होगा। तो ऐसे मतलब होम थिएटर हो सकता है स्पाउस के पास। शौकीन इंसान है ये यहाँ नज़र आ रहा है। एंड आपका जो धाराकार का प्लैनेट है, प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट पाइल नंबर 3, it can be Saturn or it can be Jupiter, it can even be Sun. आपका जो 7th लॉर्ड है, 7th हाउस है, मार्स इज हस्बैंड इन अ फीमेल्स चार्ट, वीनस इज द वाइफ इन अ मेल्स चार्ट। ये जो प्लैनेट्स हैं ये आपके मतलब 7th लॉर्ड या धाराकार का या वीनस या मार्स आपके चार्ट में एरीज में या फिर वर्गो में या फिर स्कॉर्पियो में, इवन कैंसर में प्लेस्ड हो सकते हैं। सो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर टॉरस साइन भी, टॉरस ऑल्सो सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, मतलब टॉरस साइन में भी 7th लॉर्ड धाराकार का ये सब प्लेस्ड हो सकता है। टॉरस में भी कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। फिर कैंसर में वी हैव पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा। वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा।
फिर स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा. इवन लिब्रा सीम्स टू बी ऑल्सो प्रोमिनेंट. तो लिब्रा में चित्रा स्वाति विशाखा. तो इन साइंस इन नक्षत्रस में आपके 7th लॉर्ड धाराकार का वीनस या जुपिटर प्लेस्ड होगा, वीनस या मार्स प्लेस्ड होगा. कोई और प्लैनेट्स भी आपके चार्ट में इन साइंस इन नक्षत्रस में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में प्लेस्ड हो सकते हैं. आपके स्पाउस के चार्ट में भी जो है प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन दी स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो, एरीज, टॉरस साइन में. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. All the best for future, my dear. Again, Saturn can also be his or her Atma Karka. आपके spouse का Atma Karka can be Saturn or can be Sun or can be even Venus, क्योंकि Venus beauty है. So Venus can also be your Dhara Karka. Venus can also be your spouse's Atma Karka. Planet holding the highest degree in someone's chart, or planet holding planet nearest to 30 degrees is the Atma Karka. वो आपके spouse के chart में Venus हो सकता है, Saturn हो सकता है, सन भी हो सकता है. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones from the website itself. I shall see you in the next reading. Pile number 3. Tab tak ke liye be positive. Stay happy.